بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں ناجا نیازی۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ صوبے معیشت کو کھولنے کے لیے انفرادی طور پر مختلف رفتار سے آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن سب اپنے اصولوں اور وفاقی حکومت کے تعاون سے تیار کردہ رہنما خطوط پر عمل کریں گے۔ We worked very hard with the premiers across the country to ensure that we could get guidelines that reflected the foundational science and best advice given by medical experts and scientists on what needed to be in place before provinces or regions could think about reopening. Every region, every province, every territory is facing a very different situation right now with different industries, different size cities, and different spread of COVID-19. That's why we needed to make sure that the foundational elements were there that we could all follow as Canadians, but recognize that different jurisdictions will act differently. But there is a common desire right across the country from all premiers to ensure that we're doing this right. Everyone understands that the danger of opening up too quickly or the wrong way could mean we come back into this situation where we are right now, and nobody wants that. So we're going to keep moving forward responsibly according to the guidelines. جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا بھر میں گوشت کی پروسیسنگ سمیت فوڈ سپلائی کو برقرار رکھنے پر بھی زور دیا۔ ان کا یہ بیان برٹش کولمبیا میں تیسرے چکن پروسیسنگ پلانٹ میں کورونا وائرس پھیلنے کے بعد سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ کینیڈا بھر میں شہریوں کے لیے خوراک کی سپلائی کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور ہم اس حوالے سے ہونے والے فائدے اور نقصان کو دیکھ رہے ہیں۔ We understand how important it is to ensure the supply of food to Canadians right across the country. And we're watching with interest and concern some of the issues facing meat producers and the supply chain across the agricultural industry. We need to make sure that those supply chains can keep functioning, but we also need to make sure that the people who work in those supply chains and will continue to need to work in difficult circumstances over the coming weeks and months as we continue to battle COVID-19 are kept safe. The priority for us is both things, keeping people safe and ensuring a good supply of food to Canadians. We will make sure we're doing them both together. کینیڈا میں کرونا وائرس سے مزید 1620 افراد کے متاثر ہونے کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں کرونا کیسز کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اونٹیریو میں مسلسل 3 روز کمی کے بعد وائرس کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس سے مزید 1620 افراد کے متاثر ہونے کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 2,860 ہو گئی ہے۔ کینیڈا کے صوبے کیوبیک میں متاثر ہونے والوں کی تعداد اب سب سے زیادہ ہے، جہاں متاثرین کی تعداد 25,757 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ 1,682 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اونٹاریو میں 3 روز تک کرونا وائرس میں مسلسل کمی کے بعد دوبارہ تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے میں کرونا وائرس کے 525 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ صوبائی حکومت کی جانب سے جن افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے ان میں ہر 7 میں سے ایک ہیلتھ کیئر ورکر ہے، جہاں دنیا میں سب سے زیادہ ہیلتھ کیئر ورکر متاثر ہوئے ہیں۔ اونٹاریو میں متاثرہ افراد کی تعداد 15,381 ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 951 ہے۔ کینیڈا کی وزیر صحت پیٹی ہائیڈو کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف عالمی ادارہ صحت WHO کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے کینیڈا کھلا رہے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا کی وزیر صحت پیٹی ہائیڈو کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف عالمی ادارہ صحت WHO کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے کینیڈا کھلا رہے گا۔ متعدد ممتاز سیاسی رہنما، جن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی شامل ہیں، انہوں نے WHO کو وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے کی جانے والی اسکروٹنی میں لانے کا کہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عالمی ادارہ صحت پر کی جانے والی تنقید کا ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ادارے نے ابتدائی طور پر صرف چین سے آنے والا ڈیٹا ہی سامنے رکھا تھا۔ ہائیڈو کا کہنا تھا کہ ہم عالمی ادارے کی قدر کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یقینی بنانا ہوگا کہ بین الاقوامی سطح پر کام کرنے والے ادارے، جن کے ذریعے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، کورونا جیسی وبا پر قابو پانے میں ہمارے مددگار ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں۔
क्यूबेक के प्रीमियर का कहना है कि कोरोना के फैलाव को रोकने के साथ सूबे में मईशत को दोबारा खोलने का फैसला किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। क्यूबेक के प्रीमियर ने आइंदा हफ्ते से सूबे की मईशत को दोबारा खोलने का ऐलान किया है, जबकि कोरोना वायरस के सबब लगाई जाने वाली पाबंदियों में नरमी की जाएगी। क्यूबेक के प्रीमियर का कहना है कि कोरोना के फैलाव को रोकने के साथ सूबे में मईशत को दोबारा खोलने का फैसला किया है। उनका कहना था कि मई के महीने में 3 तरह के कारोबार खोलने का फैसला किया है। उनमें शॉपिंग मॉल्स के अलावा स्टोर्स को खोला जाएगा, कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग के कारोबार खोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार भी खोलेंगे। इस वक्त हमारी सोसाइटी को उन कारोबारों से इस्तिफादा चाहिए क्योंकि लोग उन पर इन्हिसार कर रहे हैं। प्रीमियर ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत सूबे में 4 मई से रिटेल स्टोर्स खोले जाएंगे। मॉन्ट्रियल में रिटेल स्टोर्स को 11 मई से खोला जाएगा। रिटेल स्टोर्स के खुलने से 1,96,000 अफराद अपनी मुलाजमत पर वापस आ जाएंगे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को 11 मई से खोला जाएगा। इब्तदाई मरहले में हर कंपनी में सिर्फ 50 मुलाजमीन को एक वक्त में काम की इजाजत होगी। इस शोबे में 85,000 मुलाजमीन दोबारा काम शुरू कर देंगे। 25 मई से 50 अफराद की हद को बढ़ा दिया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि ये तमाम कारोबार कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी आने या बेकाबू होने की सूरत में दोबारा बंद किए जा सकते हैं। 9 यूनियंस और 45,000 टीचर्स की नुमाइंदगी करने वाले इदारे की जानिब से कहा गया है कि अमला ज़ाती हिफाजती सामान के बगैर काम पर वापस नहीं आएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबिक में असासा और बस ड्राइवरों की नुमाइंदगी करने वाली फेडरेशन की जानिब से नौजवान तलबा और बच्चों को एलिमेंट्री स्कूल और डे केयर्स में भेजने के हुकूमत के मंसूबे पर तशवीश का इजहार किया गया है, क्योंकि सूबे में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। यूनियंस और 45,000 टीचर्स की नुमाइंदगी करने वाले इदारे की जानिब से कहा गया है कि अमला ज़ाती हिफाजती सामान के बगैर काम पर वापस नहीं आएगा। अपने बयान में फेडरेशन की सदर का कहना था कि असासा से इस हिकमत अमली के बारे में मशवरा नहीं किया गया। उन्होंने एक बयान में कहा कि हम इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि असातिज़ा गैर महफूज हों और वो बगैर किसी बचाव के फ्रंट लाइन पर हों। सूबाई हुकूमत ने ऐलान किया है कि बेशतर इलाकों में 11 मई से एलिमेंट्री स्कूल और डे केयर्स दोबारा खुल जाएंगे। ग्रेटर मॉन्ट्रियल एरिया जहां नेफ्स केसेस सामने आए हैं, वहां इस मंसूबे पर 19 मई से अमल दरामद शुरू होगा। मॉन्ट्रियल की मेयर का कहना है कि हालिया गर्म मौसम गुज़िश्ता मौसमों की निस्बत बहुत मुख्तलिफ होगा। हम कोरोना वायरस की वजह से पहले ही अपने 2 बड़े फेस्टिवल्स कैंसिल कर चुके हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मॉन्ट्रियल में मौसम अच्छा हो रहा है और शहर की मेयर विलेरी प्लोंट ने समर प्लान का इशारा दिया है कि शहरी किस तरह से खुद को महफूज रखते हुए इस मौसम से लुफ्तअंदोज हो सकते हैं। प्लोंट का कहना है कि इस मंसूबे में हिकमत अमली शामिल होगी कि इस शहर के अवामी मकामात पर क्या कुछ हो सकता है, जबकि डे कैंपस और दीगर सरगर्मियों के लिए भी बच्चों और फैमिलीज के लिए रहनुमा असूल शामिल किए गए हैं। प्लोंट ने एक बार फिर शहरियों से 2 मीटर के फासले को बरकरार रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर शहरी पार्क्स में जाना चाहते हैं तो अपने घर के करीबी पार्क्स में जा सकते हैं। मेयर ने कहा कि सूरज का निकलना हमारे लिए खुशी का बाइस है और हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालिया गर्म मौसम गुज़िश्ता मौसमों की निस्बत बहुत मुख्तलिफ होगा। हम कोरोना वायरस की वजह से पहले ही अपने 2 बड़े फेस्टिवल्स कैंसिल कर चुके हैं। हवाई जहाज और ट्रेन बनाने वाली कंपनी की जानिब से कहा गया है कि वो 11 मई तक क्यूबेक में दोबारा पैदावार शुरू कर देगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बॉम्बार्डियर इनकॉर्पोरेशन की जानिब से कहा गया है कि आइंदा चंद हफ्तों में कंपनी के आर्जी तौर पर बरतरफ किए गए 11,000 मुलाजमीन अपने काम पर वापस आ जाएंगे। क्यूबेक सूबे में 4.5 लाख अफराद सूबे में मईशत खुलने के बाद अपनी नौकरियों पर वापस आने के लिए पुरुमीद हैं। हवाई जहाज और ट्रेन बनाने वाली कंपनी की जानिब से कहा गया है कि वो 11 मई तक क्यूबेक में दोबारा पैदावार शुरू कर देगी। मौशी बहाली इस कंपनी के लिए खुशाइंद खबर होगी, जिससे हिस्से की कीमत में कमी, क्रेडिट की कमी और 9.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्जे का सामना है। बॉम्बार्डियर ने 24 मई को, जब कनाडा भर में गैर जरूरी कारोबारों को बंद कर दिया गया था, अपने 12,400 मुलाजमीन को बिला मुआवजा छुट्टियों पर भेज दिया था। इटली, स्पेन, बेल्जियम, नेदरलैंड और जर्मनी में कोरोना का जोर टूट गया, जबकि कनाडा में एक ही रोज में 150 अमवात के बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 2,852 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
दुनिया भर में कोरोना वायरस 31 लाख से ज्यादा अफराद को मुतासर कर चुका है, जबकि 2,18,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। अमेरिका में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 10,22,000 से तजावुज कर गई। मरने वालों की तादाद 58,000 के करीब पहुंच गई। बरतानिया में मजीद 586 अमवात के बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 21,678 हो गई। इटली, स्पेन, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और जर्मनी में कोरोना का जोर टूट गया, जबकि कनाडा में एक ही रोज में 150 अमवात के बाद हलाकतों की तादाद 2,852 हो गई। ईरान में मजीद 71, सऊदी अरब में 8 और अमारात में 7 अफराद कोरोना की वजह से जान से गए, जबकि भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,543 केसेस रिपोर्ट हुए। चीन में कोरोना के 6 नए मरीज सामने आए और जनूबी कोरिया में एक हफ्ते से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अमरीकी सदर का कहना था कि अमेरिका आने वाली बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की कोरोना टेस्टिंग का सोच रहा है। टेस्टिंग के मामले पर एयरलाइंस से मिलकर काम कर रहे हैं। हम कोरोना टेस्टिंग में पूरी दुनिया से आगे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमरीकी सदर ने मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस ज्यादा होने की वजह बता दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका में सबसे ज्यादा केसेस ज्यादा तादाद में टेस्ट किए जाने की वजह से हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में कोरोना केसेस की बड़ी तादाद ज्यादा टेस्टिंग की वजह से है। दीगर ममालिक भी अगर इतनी ही टेस्टिंग करेंगे तो केसेस की तादाद भी ज्यादा आएगी। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब कोरोना केसेस जीरो हो जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका आने वाली बैनुल-अक़वामी परवाजों की कोरोना टेस्टिंग का सोच रहा है। टेस्टिंग के मामले पर एयरलाइन से मिलकर काम कर रहे हैं। हम कोरोना टेस्टिंग में पूरी दुनिया से आगे हैं। उनका कहना था कि उन्हें विरसे में टूटा हुआ सिस्टम मिला। मुल्क की सड़कें ठीक नहीं और हमने मशरिक़ वुस्ता में $8 अरब खर्च कर दिए। अब कहानी माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब इंतजामिया और इदारे बेहतरीन काम कर रहे हैं। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने हरमैन शरीफैन आम नमाजियों के लिए खोलने की तैयारी कर ली। मुसलमान रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाजिरी दे सकेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी आम नमाजियों के लिए खोलने की तैयारी कर ली, जिसके बाद मस्जिदुल हराम में तवाफ और नमाज की इजाज़त होगी, जबकि मुसलमान रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाजिरी दे सकेंगे। तफसीलात के मुताबिक सऊदी वजारत हज और उम्रा ने हरमैन शरीफैन आम नमाजियों के लिए खोलने की तैयारी कर ली। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी इंतजामी उमूर की कमेटी के सरबराह इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अल सदीस का कहना है कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी को अनकरीब खोल दिया जाएगा, जिसके बाद मस्जिदुल हराम में तवाफ और नमाज की इजाज़त होगी, जबकि मुसलमान रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाजिरी दे सकेंगे। इमाम काबा का कहना था कि नमाजियों को हरमैन शरीफैन में दाखिल होने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा। ख्याल रहे कि हरम शरीफ और मस्जिद नबवी में महदूद पैमाने पर तरावी अदा करने की मशरूत इजाज़त दी गई थी। नमाज तरावी में हरम शरीफ और मस्जिद नबवी में काम करने वाला अमला ही शरीक होता है, जबकि नमाज के दौरान समाजी फासले के उसूल पर भी सख्ती से अमल किया जा रहा है। शाम के शहर आफरीन में पेट्रोल से भरे ट्रक में निस्फ बम के धमाके से बच्चों समेत 46 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शाम के शहर आफरीन में पेट्रोल से भरे ट्रक में नफ्स बम के धमाके से बच्चों समेत 46 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों में 11 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि फौरी तौर पर किसी तंजीम की जानिब से हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई है। आफरीन शहर के बाजार में किए गए इस बम धमाके में 6 शामी बागी भी हलाक हुए, जबकि 50 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हैं। तुर्की की वजारत दिफा ने हमले का जिम्मेदार कुर्द बागियों को करार दिया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।